अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। मोदी की क़ियादत में नीति आयोग का अहम इजलास। 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता कौम बनाने का किया गया अहद। नीति आयोग के इजलास का इंडिया इत्तेहाद ने किया बॉयकॉट। माइक बंद करके मुझे बोलने नहीं दिया गया, ममता बनर्जी का इल्जाम। मुल्क गलत लोगों के हाथों में चला गया है, अमित शाह पर शरद पवार की कड़ी तनकीद। कहा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से जिला वतन किया था, आज वो मुल्क का वजीर दाखिला है। और कश्मीर के कुपवाड़ा में सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। एक पाकिस्तानी कमांडो हलाक, 2 जवान जख्मी। हेडलाइंस के बाद बढ़ते हैं अब खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की अहम 9वीं मीटिंग की सदारत की और कहा कि मुल्क को एक तरक्की याफ्ता कौम बनाने में रियासतों का किरदार अहम होगा। वज़ीर आज़म ने अपने इब्तिदाई खिताब में कहा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का निशाना हर हिंदुस्तानी की उमंगों से जुड़ा हुआ है। मरकज़ में नई हुकूमत की तश्कील के बाद नीति आयोग की इस मुकम्मल मीटिंग का इनेकाद किया गया है ताकि मुख्तलिफ तरक्याती मसाइल और पॉलिसी के मौज़ूआत पर बातचीत की जा सके। मीटिंग के एजेंडे में हिंदुस्तान को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के हदफ से मुताल्लिक़ उमूर पर जोर दिया जा रहा है। मीटिंग का मरकजी मौजू तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी को छोड़कर अपोजिशन जमातों के ज़ेर इख्तियार रियासतों के वज़राए आला ने इजलास का बॉयकॉट किया। वो इस बार के आम बजट में इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कार्रवाई के तरीक़ेकार पर एहतजाज करते हुए मीटिंग को दरमियान में ही छोड़ दिया। उनका इल्ज़ाम है कि जब वो मगरबी बंगाल के मसाइल पर बात कर रही थी तो उनका माइक बंद कर दिया गया। Why you discriminate? Why you stop me? I am only attending. You should be happy for that. Instead of that, you are giving more scope to your party. আমি যেটা বলেছি সেটা আমি দেশের স্বার্থে এবং বাংলার স্বার্থে রাজ্যগুলোর স্বার্থে আজকে এসেছি। টাকা কিন্তু আপনাদের পরিষ্কারভাবে বলছি, আপনারা বাজেটে আমাদের বঞ্চনা করেছেন। আপনারা বাংলার সমস্ত উন্নয়নের প্রজেক্ট বন্ধ করে দিয়েছেন। আপনারা বিরোধী দলের কোনো রাজ্যকে কোনো সুযোগ দেন না এবং আপনারা আমাদের 3 বছর ধরে 100 দিনের কাজ বন্ধ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বন্ধ, রুরাল রোড যোজনা বন্ধ, সমস্ত কিছু বন্ধ করে রেখেছেন। এমনকি ফুড সাবসিডি পর্যন্ত দেননি। আমরা 1,71,000 কোটি টাকা পাই লাস্ট ইয়ার পর্যন্ত। এই বাজেটেও কিছু নেই, শুধু জিরো। এইটুকু বলার সাথে সাথে আমার মাইকটা স্টপ করে দিয়েছে। আমি বললাম, why you discriminate, why you stop me? I am only attending. You should be happy for that. Instead of that, you are giving more scope to your party, your government, and you only me on behalf of opposition. Only I am there, and you stop my mic. আপনি আমার মাইক বন্ধ করে দিচ্ছেন। আপনাদের এই বঞ্চনা আমি মানি না, তাই মনে রাখবেন আমি চললাম। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने ममता बनर्जी के इन दावों की तरदीद की कि नीति आयोग मीटिंग के दौरान उनका माइक बंद कर दिया गया था। ANI से बातचीत करते हुए उन्होंने TMC सुप्रीमो पर झूठ पर मबनी बयान देने का इल्जाम आयद किया। এইটুকু বলার সাথে সাথে আমার মাইকটা স্টপ করে দিয়েছে। আমি বললাম, why you discriminate, why you stop me? Apparently she is now conveyed to the media or conveyed through the media that her mic was put off. That is completely false. Every chief minister was given their due time to speak. It's unfortunate that the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has claimed that as switching off her mic, which is not true. I wish Mamata Banerjee would please say the truth behind this rather than again build a narrative based on falsehood. But apparently she is now conveyed to the media or conveyed through the media that her mic was put off. That is completely false. Every chief minister was given their due time to speak. If they wanted an extra time, when the meeting which is being
chaired by the Prime Minister, but the organizing of the meeting is being done by Senior Minister Shri Rajnath Singh, Raksha Mantri ji. At the end of the allotted time of the Chief Minister, Rajnath ji would tap on the mic, so it would go audibly. You will hear a tick noise. It has been done for all Chief Ministers, but it's unfortunate that the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has claimed that as switching off her mic, which is not true, and it is unfortunate because we were quite happy that she participates in this meeting, puts forth her case, speaks for West Bengal, and as she said in the meeting, she spoke for all the opposition. But even as she was doing it, and we were hearing, as per the procedure, if she is reminded that her time is over, even with the mic on, she could have requested that she is going to continue speaking like some other chief ministers did. She could have continued speaking as long as she wanted, like some chief ministers did. But she chose to use that as an excuse so that she can get out of the meeting. And after getting out of the meeting, for her to say that the mic was switched off is just so unfortunate. I wish Mamata Banerjee would please say the truth behind this rather than, again, build a narrative based on falsehood. श्रोमणी अकाली दल की एमपी हरसिमरत कौर ने बजट पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बजट को इंतहाई मायूसकुन करार दिया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि महज अपने इत्तेहादियों को खुश करने के सिवा हुकूमत ने इस बजट में कुछ नहीं किया। मैं तो मांग करूंगी कि इस बजट का नाम बदलना चाहिए, क्योंकि ये देश का बजट नहीं, ये सरकार बचाओ बजट है। जो देश का बजट होता तो फिर देश में 28 राज्य हैं, कितनी सारी यूनियन टेरिटरीज हैं, सब मिला के तो ये तो 37 के करीब हो, लेकिन पूरे बजट में केवल 9 राज्यों का नाम था और सबसे उसमें ज़्यादा बजट तो वो 2 राज्यों को मिला जिसकी लाठी के, जिसके कंधे के सहारे में ये सरकार चल रही है। तो ये देश का बजट नहीं सर, ये सरकार बचाओ बजट था। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि बजट में नेचुरल कैलेमिटीज और धर्म के नाम पे भी पक्षपात किया गया है। ये तो मैं पहली बार ही देख रही हूँ। बहुत अच्छी बात कि आपने धार्मिक स्थानों को, बोध गया को, राजगीर को, जहाँ जहाँ आपने दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस श्री दरबार साहब पे, अमृतसर साहब पे रोज 2 लाख लोग नतमस्तक होते हैं, उनको मुफ्त खाना मिलता है, सबसे बड़ा दुनिया भर, देश भर के लोग वहां पे जाते हैं और जहां पे सारा दिन सरबत के भले की अरदास होती है, उसका तो आपने नाम तक नहीं लिया। और फिर मैं नेचुरल कैलेमिटीज की बात करूं तो फ्लड रिलीफ आपने राज्यों को दिया, बहुत अच्छी बात। जैसे मेरे सहयोगी ने मेरे से पहले बोला कि ये जो पानी आता है हिमाचल को आपने दिया पैकेज, तो हिमाचल का पानी पंजाब में आके पंजाब को जब डुबो देता है और तबाही मचाता है तो पंजाब को आप क्यों भूल जाते हैं? जब पानी डैम में भर जाता है तो आप डैम खोल देते हैं और हमारा पंजाब डुबा देते हैं। जब घग्गर रिवर का लेवल ऊपर हो जाता है तो चुपचुपीते 7 के राज्यों को बचाने के लिए बंद तोड़ देते हैं और हमारे गांव को डुबा देते हैं। तो जब बाढ़ आती है तो उनको आपने दिया पैकेज, में उसका आपको आभार प्रकट करती हूँ, लेकिन हमारे राज्य के साथ क्या दुश्मनी है? क्या पंजाब के जनता, पंजाब के लोग, पंजाब के किसान, पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को मैटर नहीं करता? और हैरानी की बात सर, जब बाढ़ आती है तो पंजाब सफर करे, जब पानी की कमी हो जाती है तो फिर कांग्रेस हो, आम आदमी हो, भाजपा हो, सारे इकट्ठे होकर षड्यंत्र खेले कि एसवाईएल की नहर बनाइए ताकि पंजाब का पानी दूसरे राज्य को जाइए। तो जब पानी कम होता है तब तो हमारा पानी चुराना चाहते हैं, जब पानी उनमें ज्यादा हो जाता है तो पंजाब को फ्लड कर देते हैं। और सर आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ, तकरीबन 70 साल पहले इस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने रिपेरियन प्रिंसिपल्स के खिलाफ हमारा पानी राजस्थान को दे दिया और कहते थे 1 साल में उस पानी का कॉस्ट क्या होगा आपको डिसाइड करके मिले। 70 साल से आज तक डिसीजन नहीं हुए। तो जो पानी हमारा दूसरे राज्य को रिपेरियन प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहा है, या उसको बंद किया जाए या हमें उसका पैसा दिया जाए, ये मैं आपसे आज मांग करती हूँ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हाल ही में एनसीपी एसपी के सरबराह शरद पवार को बदउनवानी का सरगना करार दिया था। अब शरद पवार ने उनके इस बयान के हवाले से जवाबी हमला किया है। उन्होंने मरकजी वज़ीर दाखिला को याद दिलाया कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उनकी आबाई रियासत
गुजरात से जिला वतन कर दिया था। उन्होंने कड़ी तनकीद करते हुए कहा, यह अजीब बात है कि वज़ीर दाखिला वो शख्स है जिन्होंने गुजरात के कानून का गलत इस्तेमाल किया और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गुजरात से जिला वतन कर दिया था। उनका मजीद कहना था कि जिसको जिला वतन किया गया था वो आज वज़ीर दाखिला है। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमें गौर करना चाहिए कि जिन लोगों के हाथ में ये मुल्क है वो किस तरह गलत रास्ते पर गामजन है, वरना मुझे 100% यकीन है कि वो मुल्क को गलत रास्ते पर ले जाएंगे। हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF के 86वें यौम तासीस के मौके पर कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने फौजियों की बहादुरी की मीरास को याद किया। उन्होंने हफ्ते को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा, CRPF के 86वें यौम तासीस पर हम अपनी कौम की हिफाजत के लिए वक्फ बहादुर सिपाहियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। बहादुरी की मीरास के साथ CRPF हिंदुस्तान की सलामती को यकीनी बनाने में अहम रोल अदा करती है। हम अपने बहादुर सिपाहियों की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं और उनके अफराद ख़ानदान से इजहार तशक्कुर करते हैं। उनकी गैर मुतज़लज़ल बहादुरी और अज़्म हमें हर रोज़ मुतासिर करते हैं। समाजवादी पार्टी की रुकन राज्यसभा की जानिब से पेश किए गए प्राइवेट बिल पर होने वाली हंगामाराई के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो हमेशा पसमानदा तबक़ात, दलितों और क़बाइलियों के खिलाफ थी और रहेगी। संजय सिंह ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट ने कल ऐवान में बर्ताव किया वो बीजेपी का गैर अखलाकी रवैया जाहिर कर रहा है। कल सूरत हाल इस नहज पर पहुंच गई थी कि हमें लगा कि ऐवान में मारपीट की नौबत आ जाएगी। अगर चेयरमैन ऐवान में न होते तो मुझे ज़दोकोब भी किया जा सकता था। सर एक मिनट सर हाउस क्यों एडजर्न हुआ? सर एक मिनट सर हाउस सर मुझे आपने 2 मिनट का टाइम दिया है, प्लीज। आपने रोका, मैंने उसको ट्वीट कर दिया। मंत्री जी नाराज हो रहे हैं, इतने लोग इनके पीछे खड़े होके हमको धमका रहे हैं। हम धमकियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। आप जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं आपके सामने। सर उधर से कह रहे हैं इनको जेल में भेजा जाएगा। अरे भेजो जेल में भेजना चाहते हो भेजो। यही सदन से जेल भेज दीजिए सर, सदन से जेल भेज दीजिए, जेल से डराइए मत। धन्यवाद मान्यवर। इस सदन की कार्रवाई के बारे में सत्ता पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग ट्वीट करते हैं। अब देख लीजिए सर, आपने अलाउ किया है, वो बोल रहे थे मैं चुपचाप सुना सर। ट्वीट करते हैं प्लीज। हमारे एक साथी ने यहां पर ओबीसी आरक्षण जनसंख्या के आधार पर दिया जाए, ये बहस जी आपको बोल रहा हूं सर। वो बहस में हिस्सा ले रहे थे नीरज डांगी जी, सब लोगों ने रोका सर। एक मिनट सर हाउस क्यों एडजर्न हुआ? सर एक मिनट सर हाउस सर मुझे आपने 2 मिनट का टाइम दिया है, प्लीज 2 मिनट का सर टाइम दिया है, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। इन लोगों ने रोका, हाउस एडजर्न हुआ सर। अगर रोका नहीं तो हाउस एडजर्न क्यों हुआ? आपने रोका, मैंने उसको ट्वीट कर दिया। मंत्री जी नाराज हो रहे हैं, इतने लोग इनके पीछे खड़े होके हमको धमका रहे हैं। हम धमकियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। आप जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं आपके सामने। सर उधर से कह रहे हैं इनको जेल में भेजा जाएगा। अरे भेजो जेल में भेजना चाहते हो भेजो। ये वाजपेयी जी हमारे राज्य से आते, कहते हैं इनको जेल में भेजा जाएगा। अरे भेजो जेल में। जेल से कौन डरता है? किसको डरा रहे हो आप जेल से? भाई आप भेजिए जेल में। सर यही सदन से जेल भेज दीजिए सर, सदन से जेल भेज दीजिए। जेल से डराइए मत, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, सदन से जेल भेज दीजिए। आप सरकार में है, सत्ता में है, आप जेल भेजना चाहते हैं। ओके। आप लोग चिल्ला रहे हैं जेल भेजेंगे, यही से भेजिए। ओके। अगर नीरज जी, मिस्टर नीरज डांगी प्लीज स्टार्ट द डिबेट। अंतिम नहीं, हो गया ओके। अंतिम लाइन 1 सेकंड, अंतिम लाइन। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये मेरी प्रबल धारणा है
भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की विरोधी है, ये मैं मानता हूं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF के तमाम अहलकारों को फोर्स के यौम तासीस पर मुबारकबाद दी है और कौम के तय उनके गैर मुतज़लज़ल लगन और मजबूत जज्बे की सिताइश की। मोदी ने आज हफ्ते को डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पैगाम में कहा, यौम तासीस के मौके पर CRPF इंडिया के तमाम अहलकारों को मेरी नेक ख्वाहिशात। कौम के लिए उनकी अटूट लगन और अनथक खिदमत वाकई काबिल तहसीन है। वो हमेशा हिम्मत और अज़्म के आला तरीन मेयारात पर कायम रहा है। हमारी कौम को महफूज रखने में उनका किरदार भी अहम है। वाज़ेह है कि ये फोर्स सन 1939 में आज के दिन ही कायम हुई थी। फोर्स का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इस फोर्स में मुलाजमीन की तादाद 3 लाख से ज़ायद है। आइंदा 3 साल में नक्सलिज्म को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के CRPF के हदफ पर DG CRPF अनीश दयाल ने आज बात करते हुए कहा कि वज़ीर दाखिला ने हमें पहले ही एक टाइम लाइन दे दी है कि आइंदा 3 साल में नक्सलिज्म को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। CRPF के अलावा BSF, ITBF फोर्स भी तैयार है और छत्तीसगढ़ पुलिस भी इसमें अहम किरदार अदा करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि हम नक्सलिज्म को मिटाने में ज़रूर कामयाब होंगे। नक्सली इलाकों में हम उस जगह पहुंच गए हैं कि जहां पर कि जो उनका कोर एरिया बोला जाता है बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर पर, उसमें CRPF अंदर होती जा रही है। 3 साल में इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं। अब ये 3 साल का समय एक सेंस में लोग नक्सलवाद से दूर जाएंगे ही जाएंगे। देश को लेट डाउन नहीं करेगी, ये मैं एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ। ये 86वां रेजिंग डे है CRPF का, तो अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 1939 से शुरू करके आज जहां CRPF पहुंची है और जिस तरीके के सारी आंतरिक सुरक्षा के मामले में CRPF का जो एक रोल उभर के आया है, तो ये वाकई में अपने में गर्व का एक विषय है कि देश को जब जहां आंतरिक सुरक्षा के लिए, राज्यों की मदद के लिए, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पर जरूरत पड़ी है, तो CRPF वहां पहुंची है। आगे चलते हुए जैसे हमारे स्पेशलाइज्ड यूनिट्स बन गई हैं, RAF है जो कि सांप्रदायिक दंगों और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस के लिए, कोबरा यूनिट है जो कि जंगल वॉरफेयर में नक्सलियों के लिए, फिर हमारी वैली में QAT है जो कि अर्बन टेररिज्म के लिए है, VIP सिक्योरिटी यूनिट है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक बार फिर जंगजुओं और फौज के जवानों के दरमियान तसादुम हुआ। कमकारी इलाके में होने वाले इस तसादुम पर फौज की तरफ से बयान में कहा गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुड़ हिल सेक्टर की एक चौकी पर नामालूम अफराद के साथ फायरिंग हुई। एक पाकिस्तानी मारा गया है जबकि हमारे 2 फौजी जख्मी हुए हैं और उन्हें निकाल लिया गया है। फौजी की चिन्नार कौर ने X पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी फराहम करते हुए कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुड़ हिल सेक्टर में कमकारी पोस्ट पर नामालूम अफराद के साथ फायरिंग का तबादला हुआ। उन्होंने कहा कि गोलियों के तबादले के दौरान एक पाकिस्तानी मिलिटेंट मारा गया जबकि हमारे 2 जवान जख्मी हो गए, जिन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया है। उनका कहना था कि इलाके में ऑपरेशन हनूज जारी है। कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात ने बेंगलुरु को दहला कर रख दिया। कहा जा रहा है कि 22 जुलाई को एक 24 साला वर्किंग वुमेन को गर्ल्स PG में एक नौजवान ने इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कत्ल की यह खौफनाक वारदात CCTV फुटेज में रिकॉर्ड हो चुकी है। फुटेज में दिखाया गया है कि किस तरह एक नौजवान PG में घुस आया और उसने इस लड़की को नीचे गिराकर उसका गला काट दिया। इसी दौरान बेंगलुरु कमिश्नर पुलिस ने इस वारदात की तफसील बताते हुए कहा कि मामले की तहकीकात जारी है। As regards the murder of a girl in a PG accommodation in the limits of Koramangala police station, the case has been taken up and investigation is going on in full swing. We have made 3 teams to apprehend the culprit.
The police teams are working on it, and very shortly the accused will be apprehended. मुल्क के कई हिस्सों में शदीद बारिशों ने तबाही मचाकर रख दी है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग ने यमुनोत्री धाम और उसके आखिरी स्टॉप जानकी चटी पर तबाही के मनाजिर देखे जा रहे हैं। यमुना नदी के पानी की सतह में भी इजाफा हुआ है और यमुनोत्री मंदिर के कुछ हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा। और आखिर में फिर एक मरतबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मोदी की क़ियादत में नीति आयोग का अहम इजलास। 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता कौम बनाने का किया गया अहद। नीति आयोग के इजलास का इंडिया इत्तेहाद ने किया बॉयकॉट। माइक बंद करके मुझे बोलने नहीं दिया गया, ममता बनर्जी का इल्जाम। मुल्क गलत लोगों के हाथों में चला गया है। अमित शाह पर शरद पवार की कड़ी तनकीद। कहा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से जिला वतन किया था, आज वो मुल्क का वजीर दाखिला है। और कश्मीर के कुपवाड़ा में सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। एक पाकिस्तानी कमांडो हलाक, 2 जवान जख्मी। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।